Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Shumail Sattar, SS Physics at TPS and College Sahiwal. Today we are going to discuss significant figures and example number 1.4 from the chapter number 1, which is physical quantities and measurement. And the contents of our today's topic is significant figures, definition of significant figures, rules to find significant figures, relation of significant figures with precision, rounding the numbers, and the example number 1.4. And our objectives are, by the end of the lesson, you will be able to define the significant figures, explain the rules to find the significant figures, explain how precision is related to significant figures, and know how to round off the numbers. So before going to start our today's topic, let's recall some previous knowledge. As you have already discussed scientific notation, so let's recall it. In scientific notation, a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10. ऐसी नोटेशन जिसमें हम किसी भी नंबर को पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करवाएं और उसे मल्टीप्लाई करवा दें 1 एंड 10 के दरमियान में किसी भी नंबर से, तो ऐसी नोटेशन को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अ नंबर 62750 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस और दिस और दिस. This is the number. We can express this number in three possible ways, which could be 62.75 into 10 raised to power 3, or 6.275 into 10 raised to power 4, or 0.6275 into 10 raised to power 5. All these are correct, but the number that has one non-zero digit before the decimal, that is the second number, this preferably be taken as the standard form. Similarly, the standard form of 0.00045 second is 4.5 into 10 raised to power minus 4 second. So this is the standard form in which there should be only one non-zero digit before the decimal point. So this standard form will help us in significant figures. Now moving on, let's start our today's topic, that is significant figures. First of all, we will define significant figures as all the accurately known digits and the first doubtful digit in an expression are called significant figures. किसी भी एक्सप्रेशन में सारे के सारे एक्यूरेटली नोन डिजिट्स और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, यानी पहला वो डिजिट जो डाउटफुल हो सकता है, इसे और सारे एक्यूरेटली नोन डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं. इट रिफ्लेक्ट्स द प्रिसीजन ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. और सिग्निफिकेंट फिगर से हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की प्रिसीजन का पता चलता है. अब वो कैसे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर फॉलोड बाय सम सुटेबल यूनिट. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक नंबर और एक यूनिट से एक्सप्रेस करवाते हैं. एवरी मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड इट्स ट्रू वैल्यू. द एक्यूरेसी इन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एक्यूरेसी इन 3 फैक्टर्स की बेस पे फाइंड की जा सकती है. फर्स्ट फैक्टर इज द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, जितना ज़्यादा प्रिसाइज होगा, उतनी ही हमें ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग मिल सकती है. सेकेंड वन इज द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर. अब एक्यूरेसी स्किल ऑफ ऑब्जर्वर पे भी डिपेंडेंट है. इसका मतलब अगर तो ऑब्जर्वर के स्किल्स अच्छे हैं और वो ठीक तरह से रीडिंग ले सकता है, तो हमारी मेजरमेंट उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी. एंड द लास्ट वन इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड. हम जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस लेंगे और उनकी एवरेज लेंगे, इससे हमारा फाइनल रिजल्ट भी उतना ही एक्यूरेट होगा. सो यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है, राइट द फैक्टर्स विच डिटरमिन द एक्यूरेसी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. सो द फैक्टर्स आर दीज: द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, the skill of the observer, and the number of observations made. For example, a student measures the length of a book as 18 cm using a measuring tape.
The number of significant figures in his or her measured value are 2. The left digit 1 is the accurately known digit while the digit 8 is the doubtful digit for which the student may not be sure. अगर कोई स्टूडेंट एक बुक की लेंथ को 18 सेंटीमीटर मेजर करता है तो इसमें हमारे पास 1 एक्यूरेटली नॉन डिजिट है जबकि 8 डाउटफुल डिजिट है जो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में वो श्योर नहीं है. Another student measures the same book using a ruler and claims its length to be 18.4 centimeter. अब एक दूसरा स्टूडेंट सेम बुक की मेजरमेंट ले रहा है विद द हेल्प ऑफ रूलर. पहले वाले ने मेजरिंग टेप के थ्रू मेजर किया था, दूसरे वाले ने रूलर के थ्रू मेजर किया है एंड इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 18.4 centimeter. In this case, all the three figures are significant. The two left digits 1 and 8 are accurately known digits. Next digit 4 is the doubtful digit for which the student may not be sure. अब 18.4 में तीनों के तीनों डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे जिसमें 1 और 8 एक्यूरेटली नॉन है और 4 डाउटफुल डिजिट है जो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. A third student records the length of the book as 18.425 centimeter. अब एक तीसरा स्टूडेंट सेम बुक की लेंथ को मेजर करता है एंड इट कम्स आउट टू बी 18.425 centimeter. Interestingly, the measurement is made using the same ruler. The number of significant figure is again 3, consisting of 2 accurately known digits, 1, 8 and the first doubtful digit 4. The digits 2 and 5 are not significant. It is because the reading of these last digit cannot be justified using a ruler. अब again इस केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही रहेंगे. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक मीटर रूल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है और वो पॉइंट के बाद अप टू 1 डिजिट तक एक्यूरेटली फाइंड कर सकता है मेजरमेंट को, जिसकी वजह से हम यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक इसकी वैल्यू को कंसिडर करेंगे और 2-5 तक क्योंकि रूलर जस्टिफाई नहीं करता, उसका लीस्ट काउंट इस रीडिंग को जस्टिफाई नहीं करता, इसलिए अगेन हम 1, 8 और 4 को ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स कंसिडर करेंगे. मेजरमेंट अप टू थर्ड और इवन सेकेंड डेसिमल प्लेस इज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. अब मतलब अप टू सेकेंड और थर्ड डेसिमल पॉइंट तक तो मीटर रूल जस्टिफाई ही नहीं करता, उसका लीस्ट काउंट इतना नहीं है, तो ये हमारे पास पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट तक एक्यूरेटली रीडिंग फाइंड कर सकता है, जिसकी वजह से अगेन हमारे पास यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, दैट इज 1, 8 एंड 4. An improvement in the quality of measurement by using better instrument increases the significant figures in the measured result. अब जैसे ही हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी को बेटर करते जाएंगे तो साथ ही हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स भी इंक्रीज करते जाएंगे. द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल द डिजिट्स दैट आर नोन एक्यूरेटली एंड द 1 एस्टिमेटेड डिजिट. सिग्निफिकेंट फिगर्स को सेकेंडली इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल द डिजिट्स दैट आर नोन एक्यूरेटली एंड द 1 एस्टिमेटेड डिजिट. मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन ग्रेटर प्रिसीजन. जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे इसका मतलब वैल्यू उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज होगी. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड द प्रिसीजन. इट मीन्स मोर सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स ग्रेटर प्रिसीजन and less significant figures means less precision. Next is the rules to find significant figures. हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड कर सकते हैं. अब इन रूल्स में हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे. द फॉलोइंग रूल्स आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट फिगर एंड द फर्स्ट रूल इज नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. नॉन ज़ीरो डिजिट्स मतलब ऐसे डिजिट्स जो ज़ीरो नहीं हैं, ज़ीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स होंगे वो हमेशा सिग्निफिकेंट कंसिडर होंगे. फॉर एग्जांपल 27 हैज़ 2 significant digits because 2 and 7 both are non-zero digits, so they are significant. So in first example we have 2 significant digits, while in second example, that is 275, it has 3 significant digits. And the second rule is the zeros between 2 significant figures are also significant. दो significant figures के दरमियान में आने वाले zeros भी significant consider किए जाएंगे. For example,
2705 has 4 significant digits. अब 0 क्योंकि 27 और 5 जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और सिग्निफिकेंट कंसिडर किए जाते हैं, तो ये 0 इन दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ रहा है, तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट ही कहलाएगा। तो इस तरह से 2705 में हमारे पास टोटल 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। रूल नंबर 3 इज फाइनल और एंडिंग जीरोस ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल फ्रैक्शन की राइट साइड वाले जीरोस जो होंगे वो हमेशा सिग्निफिकेंट कंसिडर होंगे। फॉर एग्जांपल 275.00 हैज़ 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो आए, 3 ज़ीरो आए, 4 ज़ीरो आए, ये सारे सिग्निफिकेंट कंसिडर होंगे। तो इस एग्जांपल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। Rule number 4 is zeros written on the left side of the decimal point for the purpose of spacing the decimal point are not significant. ऐसे जीरोस जो डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे हों वो सिर्फ स्पेसिंग के पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल इन 0.027 we have only 2 significant digits, that is 2 and 7, while these two zeros are considered non-significant. इसमें हमारे पास सिर्फ 2 और 7 कंसिडर किए जाएंगे एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स, जबकि डेसिमल की लेफ्ट साइड वाले सारे डिजिट्स जो होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट कंसिडर होंगे। एंड द लास्ट रूल इज इन होल नंबर्स दैट एंड इन 1 or more zeros without a decimal point. ऐसे होल नंबर्स जो एंड होते हैं 1 या मोर जीरोस पे और उनमें डेसिमल पॉइंट भी नहीं होता, तो यहाँ दीज जीरोस मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब इस केस में जीरोस सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इन सच केसेस इट इज़ नॉट क्लियर विच जीरोस सर्व टू लोकेट द पोजीशन वैल्यू एंड विच आर एक्चुअली पार्ट्स ऑफ द मेजरमेंट। अब इसमें हमारा ये डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन से जीरोस पोजीशन वैल्यू को लोकेट करने के लिए लगाए गए हैं और कौन से एक्चुअली मेजरमेंट का पार्ट हैं। In such a case, express the quantity using scientific notation to find the significant zero. Simply उस वैल्यू को scientific notation में कन्वर्ट कर देते हैं जहाँ से हमें easily significant digits का पता चल जाता है। For example, in 1.40 into 10 raised to power 5, the number of significant figures are 3. अब क्योंकि ये नंबर हमारे पास ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो यहाँ हम 10 की पावर को छोड़ के इसके साथ जितने भी डिजिट्स हैं इन्हें काउंट करेंगे और यही हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। लाइक वी हैव 1 2 and 3 डिजिट्स हियर, सो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 3. So till now we have discussed the definition of significant figures, rules to find the significant figure and the relation between the significant figure and the precision. Next we will discuss how to round off the numbers. So here are some rules. Rule number 1 is if the last digit is less than 5, then it is simply dropped. This decreases the number of significant digit in the figure. For example, 1.943 is rounded to 1.94. अब किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए हमें कुछ रूल्स कंसिडर करने पड़ते हैं। लाइक फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास 1.943 है, तो हमने देखना है कि लास्ट डिजिट जो है अगर तो वो 5 से छोटा है तो फिर हम इसे सिंपली ड्रॉप कर देंगे। इसको ड्रॉप करने से बाकी हमारे पास क्या बचेगा 1.94। ड्रॉप करने से हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कम हो रही है, तो इसका मतलब 1.943 जिसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, लेकिन जैसे ही हमने इसे रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ किया तो ये 1.94 हो गया जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। Second rule is if the last digit is greater than 5, then the digit on its left is increased by 1. This is also decreases the number of significant digits in the figure. फॉर एग्जाम्पल 1.47। अब सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग अगर तो लास्ट डिजिट हमारा 5 से बड़ा है तो इसका मतलब हम इससे लेफ्ट वाले डिजिट में 1 इंक्रीज कर देंगे, जिससे 1.47 राउंड ऑफ होके बन जाएगा 1.5, यानी 7 लास्ट डिजिट था जो कि 5 से बड़ा था, तो हमने इसको छोड़ के इसके लेफ्ट पे जो डिजिट होगा इसमें 1 ऐड कर देना है।
4 था तो इसमें 1 ऐड करके ये 5 हो गया और ये राउंड ऑफ हो गया एज 1.5। अब अगेन इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स डिक्रीज हुए हैं। क्यों? क्योंकि पहले इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे और राउंड ऑफ होके हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स रह गए। थर्ड रूल है, इफ द लास्ट डिजिट इज 5 then it is rounded to get nearest even number. For example, in 1.35 it is rounded to 1.4 and 1.45 is also rounded to 1.4. अब अगर लास्ट डिजिट हमारे पास 5 आ जाता है, 5 के इक्वल होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ के इसके लेफ्ट वाले डिजिट को इवन बना देंगे। इसका नियरेस्ट इवन नंबर जो होगा इसे उसमें कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि 3 का नियरेस्ट इवन नंबर जो है 4 आगे वाली साइड पे, इसको डिक्रीज नहीं करना बल्कि इंक्रीजिंग साइड पे इवन नंबर देखना है। तो 3 का नियरेस्ट इवन नंबर इंक्रीजिंग साइड पे 4 है, तो इसका मतलब 1.35 राउंड ऑफ होके 1.4 बन जाएगा और 1.45 में लास्ट डिजिट 5 है और इसका लेफ्ट डिजिट जो कि ऑलरेडी इवन नंबर है तो उसे हम वैसे का वैसे ही रहने देंगे, तो ये हमारे पास राउंड ऑफ होके 1.4 बन जाएगा। सो दीज आर द रूल्स टू राउंड ऑफ द नंबर्स। And now we have to discuss example number 1.4, that is find the number of significant figures in each of the following values. Also express them in scientific notation. यहाँ हमारे पास कुछ वैल्यूज दी गई हैं जिनमें हमने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने हैं और इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। लाइक वी हैव A part that is 100.8 second, B part that is 0.00580 kilometer, C part 210.0 gram. So the solution is, in part A, all the 4 digits are significant. The zeros between the two significant figures 1 and 8 are significant. फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये दोनों जीरोस क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ रहे हैं इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट कंसिडर किए जाएंगे और यहाँ हमारे पास इस तरह से 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बनेंगे। एंड टू राइट द क्वांटिटी इन साइंटिफिक नोटेशन वी मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। thus 100.8 second is equal to 1.008 into 10 raised to power 2 second. According to the standard form, we will convert this decimal point here where we have only a one non-zero digit before the decimal point, and by placing this decimal point from this to this, we have 2 digits between these, so we get the power of 10 as 2. And as the decimal point is moving from right towards left, so it is taken as +2. And the number in scientific notation can be written as 1.008 into 10 raised to power 2 second. And in B part, the first 2 zeros are not significant. Why? Because they are just placed for the purpose of spacing, and these are present on the left side of the decimal point, so these are non-significant. So here we have only 3 significant digits which are 5, 8 and 0. They are used to space the decimal point. The digit 5, 8 and the final 0 are significant. Thus there are 3 significant figures, and in scientific notation it can be written as 5.80 into 10 raised to power -3 kilometer. Again, according to standard form, we will convert this decimal point after 5, and by placing this we have 3 digits between the decimal point and where it is shifting, so it is 10 raised to power 3 and it is negative. Why? Because the decimal point is moving from left towards right, so we have 5.80 into 10 raised to power -3 kilometer. And now the solution of part C is the final 0 is significant since it comes after the decimal point, and the 0 between last 0 and 1 is also significant because it comes between the significant figures. Thus the number of significant figure in this case is 4. As we can see that this 0 is significant, as we have discussed in rules that the 0 comes after the decimal point on the right side is considered significant, and this 0 is also significant because it comes between 2 significant figures. So we have total 4 significant figures in this value, 1, 2, 3,
4. So here the number of significant figures are 4, and in scientific notation it can be written as 2.100 into 10 raised to power 2 gram. Again we will convert this decimal point from this to this place, and it becomes 2.100 into 10 raised to power 2 because 2 digits are between the decimal point and it is moving from right towards left. So again its power is plus 2 gram. So this is our today's topic. Now it's time for assignment. You have to learn the topic significant figures and you have to solve these two questions. So number 2 is, which of the following quantities have 3 significant figures? Part A is 3.0066 meter, part B is 0.00309 kg, part C is 5.05 into 10 raised to power minus 27 kg, part D is 301.0 second. तो इन चारों वैल्यूज में आपने रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को माइंड में रख के बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं. And the question number 3 is, what are the significant figures in the following measurement? आपके पास 4 measurements given है. One by one आपने इनमें बताना है कि कितने number of significant figures हैं. Part A is 1.009 meter. Part B is 0.00450 kg. Part C is 1.66 into 10 raised to power minus 27 kg. And part D is 2001 second. You have to solve these two questions. Good luck. That's all for today. Thank you so much for listening.